In our previous lecture, we discussed what are different anxiety disorders. अब आगे के जो हमारे subsequent lectures होंगे, we are going to discuss the various anxiety disorders and stress disorders one by one, getting into details of each of it so that हम अपने course के accordingly जो हमारे इसमें according to the course curriculum जो चीजें इंक्लूडेड है आपकी बुक में हम उन चीजों को डिटेल में अब लेके जाएंगे उन डिसऑर्डर्स को बेसिकली सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट generalized anxiety disorder commonly known as GAD. We're going to discuss phobic disorders, phobias, and we're going to discuss panic disorders. ये तीनों disorders आपस में linked हैं काफी हद तक, and that is why I have clustered all three together so that we can have a lecture that can be very much easily understood. Starting with generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder जो है, it is diagnosed as excessive free-floating anxiety and irrational worry which is uncontrollable. यानी कि एक इंसान जिसको ये वाला disorder होगा, उसको बहुत ज़्यादा anxiety होगी. हमने anxiety क्या होती है और किस तरह से उसके symptoms differ करते हैं, हमने वो previous अपने lecture में discuss किया है. So, जो आपकी generalized anxiety disorder होता है इसके अंदर इसी तरह से freely floating anxiety है, it is not specific to a particular reason, एक particular trigger या एक particular आपका stimulus नहीं होता जिसकी वजह से होता है. This is something that is uncontrollable और आप उसको हर time पे ही almost महसूस करते हैं. Now, people with GAD may anticipate disaster and may be overly concerned about money, health, family, work, or other issues. Individuals with GAD find it difficult to control their worry. They may worry more than what seems warranted about actual events or may expect the worst even when there is no apparent reason for concern. As this is very clearly written कि आपका जो भी बंदा generalized anxiety disorder से गुजर रहा होता है, they find it very difficult to look at the positive side. They find it very difficult to accept things as they are. They try to उनके लिए ज़्यादा मसला इस चीज़ का होता है कि वो issues जब कोई किसी किस्म के भी आपके daily life hassles जो होते हैं, उन daily life hassles को वो easily नहीं लेते, वो उनके साथ बहुत आराम से cope नहीं करते. They actually get frustrated to a limit कि उनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा सिवियर होना शुरू हो जाती है किसी भी छोटे से इवेंट की वजह से. इट्स बिकॉज कि उनको उनकी जो बॉडी है वो फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी को हर टाइम पे फेस कर रही है, उससे गुजर रही है. तो जिस टाइम हल्का सा भी कोई ट्रिगर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इमर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो जाते हैं अपने एंजाइटी के feeling. Now, GAD is diagnosed when a person finds it difficult to control worry on more days than not for at least 6 months and has 3 or more symptoms. This differentiates GAD from worry that may be specific to a set stressor or for a more limited period of time. यानी कि आपने अगर किसी को diagnose करें तो diagnostic criteria जो है time related वो ये है कि एक इंसान अगर 6 महीने के अंदर अपने आप को ज़्यादातर छोटी-छोटी बातों पे immensely irrationally excessively परेशान समझ रहा है अपने आप को और उसको साथ में 2 या 3 सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स किस तरह के हो सकते हैं कि या तो उसको खाने पीने में प्रॉब्लम है या उसको फोकस करने में प्रॉब्लम है या द पर्सन कैन नॉट स्लीप प्रॉपर्ली, इस तरह के जो इश्यूज आ रहे होते हैं. नाउ दीज बेसिकली टेल कि इंसान को एंजाइटी है एंड नॉर्मल स्ट्रेसफुल कंडीशन से ये चीज ये क्राइटेरिया डिफरेंट उसको करता है. Now, what are the causes of generalized anxiety disorder? First of all, genetics हमने कल इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. मैंने आपको phenotypic और genotypic contrast के साथ ये चीज़ समझाई थी कि how genetics affect a person's ability or the prospects that a person will develop a disorder. Then brain chemistry has been associated. It has been associated with abnormal functioning of certain nerve cell pathways that connect particular brain regions involved in thinking and emotion. These nerve cell connections depend on chemical called neurotransmitters that transmit information from one nerve cell to the next. If the pathway that connects particular brain regions do not run efficiently, problems related to mood or anxiety may result. यानी कि अगर आपका जो न्यूरल सर्किट्स हैं, जो न्यूरल पाथवेज हैं, if they are not
properly connected, if they are not efficiently working, the signals, the impulses, they are not being efficiently transferred from one neuron to another, या फिर जो आपका synaptic transmission है वहाँ पे जो आपके neurotransmitters present होने चाहिए that transmit the signal from one neuron to the other one, अगर वहाँ पे वो सही तरह से function नहीं कर रहे, excessively just adequate amount में नहीं present, even that can result into these things. So medicine, psychotherapies or other treatments that are thought to tweak these neurotransmitters may improve the signaling between circuits and help improve symptoms related to anxiety or depression. उसके अलावा environmental factors जहाँ पे आपका physiological functions जो कि आपकी brain related हैं या आपके nervous system के related हैं, then the genetics जहाँ पे जीनोटाइप और phenotype के issues आते हैं, वहाँ पे आपका सबसे important factor जो cause कर सकता है GAD, वो है environmental factors. आपके stressful life events, आपका trauma related चीजें, आपके बचपन की ऐसी बात है जो कि आपके लिए traumatic थी, it can be anything, not specifying it to abuse or any traumatic life events, but anything that caused you significant distress. आप बचपन में किसी चीज से ऐसी कोई वाकया था, कोई ऐसा इवेंट था, you had such friends जिनकी वजह से आप stressed out रहते थे, आप tense रहते थे, that is enough to make you feel anxious throughout your life, ठीक है, क्योंकि वो बचपन का टाइम वो ऐसा इस तरह का टाइम होता है that generally affects the future course of your life. So in such environmental factors do affect how easily, how susceptible you are to developing a generalized anxiety disorder. Okay? Now, death of a loved one, divorce, changing jobs or schools may contribute to generalized anxiety disorder, and also may become worse during periods of stress. The use of and withdrawal from addictive substances, including alcohol, caffeine, nicotine, can also worsen anxiety. अल्कोहल कैफीन आपको पता है, कॉफीज में, चॉकलेट्स में, आपके चाय में ये चीजें होती हैं. निकोटीन जो है दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स इन सिगरेट्स एंड इन सम ट्रेस एलिमेंट्स आपकी चाय कॉफी में भी निकोटीन प्रेजेंट होता है. तो दीज थिंग्स, बिकॉज मैं कल जिस तरह आपको समझाया था कि सिंस योर सिंपैथेटिक डिवीजन इज एक्टिवेटेड एंड आप उसको मजीद एक्टिवेट कर रहे हैं ये वाले सब्सटेंसेस प्रोवाइड करके, तो आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा एंजाइटी फील करने के लिए रेडी होना स्टार्ट हो जाती है. सो दैट इज द रीजन के अवॉइड करना चाहिए व्हेन यू नो दैट यू हैव anxiety or you know that you have a mental disorder or you're facing any sort of mental health related problems. So wahan you have to cut down on all sorts of caffeine and addictive substances. So environmental factors in combination with genetics and brain chemistry can cause generalized anxiety disorder. अब सिम्टम्स कौन से होते हैं, हमने कल भी इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस किया था. आपके जो सिम्टम्स हैं एंजाइटी के वो ओवरलैप करते हैं आपके पैनिक और फोबिक डिसऑर्डर्स के साथ, ठीक है, बट दे हैव सम ओवरलैपिंग बिटवीन डिप्रेशन एज वेल. अब यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, बिकॉज वी डोंट हैव दैट इन आवर कोर्स, बट सिंस वी आर स्टडीइंग दिस इट्स काइंड ऑफ फाइन इफ आई गिव यू दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. आप जब भी being a psychologist, if you in future opt for becoming a psychologist and आप specialize करते हैं आगे clinical में or whatsoever you domain you want to या abnormal behavior में आप specialize करते हैं, तो at that time you will understand कि हम जो diagnostic statistical manual use करते हैं, there is one domain हर disorder care में जिसको differential diagnosis कहा जाता है. Differential diagnosis basically differentiates between the symptoms and the severity of various disorders जो कि एक टाइम पे ऐसे लग रहा होता है कि ये सारा कुछ तो नहीं हो रहा. Like for example mood disorders हैं, तो आप differentiate किस तरह करेंगे, नॉर्मल डिप्रेशन में, मेजर डिप्रेशन में, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, या नॉर्मल आपका पर्सनालिटी हो सकता है कि इस तरह की हो कि आप बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आपको आते हो, बॉर्डर लाइन आप हो. ये भी हो सकता है कि वो सारे के सारे सिम्टम्स जो आपके एंजाइटी के हों और आपको डिप्रेशन में नहीं लेके जाए, इट्स नॉर्मल एंजाइटी. सो हाउ डू यू डिफर बिटवीन दीज थिंग्स, और आपके सिम्टम्स की सिम्टमोलॉजी होती है उसकी सिवेरिटी, उसके टाइम जितना गुजर चुका होता है और वो कितना ज्यादा आपको डिसफंक्शनल कर रहा है, उन सब चीजों को माइंड में रखते हुए इन चीजों को डायग्नोज किया जाता है. आपने नोट किया होगा कि अक्सर मैंने जिस टाइम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात की है तो आई डिड मेंशन कि मेडिकेशंस में आपको इवन सम टाइम पे एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स और एंटी कन्वल्सेंट्स दिए जाते हैं. Why is that? कि आपका हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे ओवरलैप हो रहा हो
बट नॉट टू द एक्सटेंट कि उसको कोमोर्बिडिटी या उसको दो डिफरेंट आप क्लासिफाई कर दे कि एक इंसान को एक वक्त में दो डिसऑर्डर्स हैं. तो जस्ट टू अवॉइड दैट कि वो कहीं फुल फ्लेश डिसऑर्डर साथ में ना डेवलप हो जाए, उसकी वजह से साथ में समटाइम्स सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं. Okay, now coming back to the symptoms of generalized anxiety disorders. First of all, excessive ongoing worry and tension. आप किसी एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत irrationally सोचते हैं, बहुत something that is not that you should be doing it. ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं सोचना बनता. Then an unrealistic view of problems. Problems हर इंसान को होती हैं, but ये बात सोच लेना कि जो मेरे साथ हो रहा है, this is something जो किसी और के साथ नहीं होता. This is something that is very severe and this is a problem that no one will understand या फिर no one is going through these things. एक unrealistic view रखना, ये कि जो मेरे साथ हो रहा है ये सबसे बुरा हो रहा है, ठीक है. दैट इज एन अनरियलिस्टिक व्यू ऑफ योर प्रॉब्लम्स. या फिर आप उनको सॉल्व करने नहीं चाह रहे या सॉल्व कर नहीं पा रहे बिकॉज यू थिंक इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी सॉल्व्ड. Then restlessness or feeling of being edgy. You're always on the edge, you always want to do something. आप रेस्ट नहीं कर पा रहे, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे, आपको हर टाइम ये लगता है कि कोई इशू आ रहा है, कोई मसला हो रहा है. There is something that you're forgetting all the time. वो वाले जो इश्यूज होते हैं that is classified as being edgy. Then irritability, obviously if you are आप जो symptoms जो हैं आपके वो जिस तरह के हैं उनकी वजह से आप irritable होंगे. Then muscular tension, headaches, sweating, difficulty in concentrations, nausea, the need to go to the bathroom frequently, tiredness, trouble falling or staying asleep, trembling, being easily startled. ये सारे symptoms हैं जो आपके generalized anxiety disorder में एग्जिबिट हो रहे होते हैं. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हो, ठीक है. जिस तरह हमने डायग्नोसिस की बात की कि एक तो टाइम पीरियड 6 मंथ्स का होना चाहिए. 6 मंथ्स में लाइक मोस्ट ऑफ द डेज द पर्सन इज वरीड एंड द पर्सन हैज अनरियलिस्टिक व्यू ऑफ प्रॉब्लम्स और वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस है. एनी 3 symptoms that accommodate this kind of a time period can be enough of diagnosing a person with generalized anxiety disorder. So it's not necessary कि full blown सारे symptoms एक इंसान को हो रहे हो. इनमें से हो सकता है अगर now for example if a person has difficulty concentrating and the person cannot sleep, वो बहुत ज़्यादा थकावट फील करता है या फिर उसको फिर इवेंचुअली उसको नींद की कमी की वजह से उसको nausea and headaches होना स्टार्ट हो गया, उसको muscular tension फील कर रहा है वो, and this is enough to diagnose the person as having generalized anxiety disorder. Moving on to the treatment, generally हमने बार-बार इस चीज़ को हर डिसऑर्डर में डिस्कस किया कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जाती है जिसके अंदर यू रिकॉग्नाइज एंड चेंज थॉट पैटर्न्स एंड बिहेवियर जो कि आपको एंशियस कर रही होती हैं. इस तरह की थेरेपी जो होती है ना, दिस इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो बेसिकली आपकी एक जो आपके कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस हैं वो उनमें से एक है. इसके अलावा भी बहुत सी अप्रोचेस हैं. आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स तो यूज करते हैं जिस टाइम पे आप थेरेपेटिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, बट अदर देन दैट बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं. आप फॉर एग्जांपल व्हाट यू फील इज फाइन बट हाउ यू रिएक्ट टू व्हाट यू फील इज नॉट फाइन, ठीक है. लाइक अगर आपको पता है कि आप एक चीज फील कर रहे हैं, your feelings, your emotions, they are valid, they are built in, ये आपका human natural response है. But the way you react to those particular feelings, आप किस तरह से overt behavior show करते हैं उसके बाद, that is the particular problem that needs to be dealt with, ठीक है. तो CBT आपकी की जाती है यानी cognitive behavioral therapy की जाती है. उसके अलावा you can go through various behavioral approaches जो कि treatment के लिए use किए जा सकते हैं. आप family therapy कर सकते हैं because many a times there are things that you cannot accept and decisions जो आप नहीं accept कर पाते या family के ऐसे traditions होते हैं जो आप accept नहीं कर पा रहे होते, living styles ऐसे होते हैं जो आप accept नहीं कर पा रहे हैं. And to bring in that acceptance आपको family therapy sometimes train होती है. For example, if you are being subject to immense anxiety because of your marital problems, तो आप couple therapy की तरफ जाएंगे. So there are different options of treatment depending upon the severity and the causes and the reasons that are leading to the generalized anxiety disorder. Moving on, the next disorder that we are going to discuss is phobia. Phobia जो होता है आपका, that is a group of anxiety symptoms जो कि किसी specific situation या किसी specific object की वजह से एकदम से आपके symptoms जो हैं वो
सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। फोबिया जो होता है वो आपको डिफरेंट तरह का, एक तो स्पेसिफिक फोबिया होता है एंड द सेकंड वन इज सोशल फोबिया। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे और सोशल फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया में से हम कोई एक टाइप अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद स्पेसिफिक फोबिया, it is generally known as a normal phobia. ठीक है, specific phobia, specific का word इसलिए use किया जाता है कि it is subject to one specific object or a few specific objects or a situation. ठीक है, it is a lasting and unreasonable fear caused by the presence or thought of a specific object or situation that usually poses little or no actual danger. ठीक है, यानी कि for example a fear of thorns, मुझे कांटों से डर लग रहा हो अगर, तो मैं अवॉइड करूंगी उस चीज को, या मुझे कट लगने से डर लगता हो, मुझे कांच से डर लगता हो, तो मैं सिर्फ इस वजह से कि मुझे कोई कट ना लग जाए, मुझे कोई चोट ना लग जाए, मैं कांच की तरफ जाऊं ना, मैं उसको देखूं ना, मैं उसको उठाऊं ना, अगर मेरे सामने कोई कांच टूट जाए तो मैं एकदम से डरने लग जाऊं, मैं उसकी तरफ जाऊं ना, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो डरना लाइक नॉर्मल फियर and phobia is extremely different. Phobias can trigger panic attacks, okay? And phobias can trigger immense anxiety. It can actually cause a full-fledged panic attack. Now, exposure to the object or situation brings about an immediate reaction, causing the person to endure intense anxiety or nervousness, or to avoid the object or situation entirely. या तो वो इंसान जिस time encounter करता है उस particular object or situation को, the person goes through intense anxiety, या फिर वो क्या करता है कि वो टू अवॉइड दैट एंजाइटी वो कंप्लीटली उस चीज का सामना करना बंद कर देता है। The distress associated with the phobia and or the need to avoid the object or situation can significantly interfere with the person's ability to function. Adults with a specific phobia recognize that the fear is excessive or unreasonable, yet they are unable to overcome it. यानी you know कि जिस चीज से आप डर रहे हैं that is completely unreasonable, but still you're scared of it. इस तरह लोग हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो स्विम नहीं कर सकते, वो पानी में बहुत ज्यादा जाना पसंद नहीं करते। अगर वो किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे पानी है, तालाब है, स्विमिंग पूल है फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसके अंदर जाने से डरेंगे जस्ट बिकॉज वो अपने इवन पाँव भी रख के नहीं बैठेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि ये ना हो कि मैं इसमें गिर जाऊं और मैं डूब जाऊं, या एनीथिंग रिलेटेड टू द पर्टिकुलर फियर। तो these are the things that are present in specific phobia. अब इसके आगे हम थोड़े से टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अब आपकी थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड हम टाइप्स को पहले डिस्कस करेंगे कि बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एनिमल फोबिया होता है जिसके अंदर आप यू फियर डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, एनिमल फोबिया जो सबसे कॉमन है क्योंकि बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, मैंने कल एग्जांपल दी कि आई एम स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स, आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड अ स्नेक but I am scared of it. Reason being ये कि मुझे पता है कि wild animal है and that particular animal is going to harm me no matter what. ठीक है, तो that is why I am phobic of snakes. तो इसी तरह से सिचुएशनल फोबियाज होते हैं। सिचुएशनल फोबियाज जो है वो काफी हद तक ओवरलैप करते हैं सोशल फोबियाज के साथ, लेकिन उनकी स्पेसिफिसिटी इस तरह से आ जाती है। फॉर एग्जांपल समवन माइट बी अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग और राइडिंग इन अ कार ऑन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या फिर वो ड्राइव करते हुए किसी एक पर्टिकुलर जगह से गुजरते हुए बहुत ज्यादा डरता हो, या फिर वो टनल्स में, ब्रिजेस में, आई एम स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग इनटू अ टनल, व्हाई, पर आई डोंट नो व्हाई, मैं ब्रिज के ऊपर जब गाड़ी चढ़ती है तो मुझे डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं ब्रिज पीछे से टूट ना जाए। तो इस तरह के जो फियर्स होते हैं, these things are generally situational phobias. आपको generally नहीं हो रहे होते, but when you are being put into that particular situation तो आपको anxiety जो है वो start हो जाती है। इसी तरह से elevator में होना, because situational phobias basically जो based है किस fear पे, वो ये है कि if something happens, if something bad happens, I will not be able to escape the particular harmful effects of it. ठीक है, तो इस वजह से situational phobia जो है उनकी base root ये होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट फोबियाज यानी कि स्टॉर्म्स, हाइट्स, पानी, आप दरिया के पास जाना पसंद नहीं करते, आप स्विमिंग पूल के पास जाना पसंद नहीं करते, आपको तेज हवाओं से डर लगता है, आपको बिजली के कड़कने से डर लगता है, आपको डर लगता है थंडर स्टॉर्म से, या फिर आप डरते हैं अर्थक्वेक से। आपको हो सकता है आप इतना ज्यादा फोबिक हो जाए इस चीज से, अर्थक्वेक से, कि हल्का सा भी कोई मूव करे आपको फील हो कि जिस तरह जलजला आ रहा है, एंड यू स्टार्ट चेकिंग इफ इट्स लाइक दैट और नॉट। Then blood injection या फिर injury phobias, अब ये जो होते हैं these are generally linked to looking at blood, यानी कि वो लोग जो होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा बच्चे हैं, इवन आपकी फैमिलीज में भी होंगे जो कि बहुत डरते हैं इंजेक्शन लगवाने से, not because it does not cause any sort of pain, जो सच्ची बात है, it does not cause any sort of pain, वो हल्की सी like for a second हल्की सी prick होती है and then it's done,
But the sight of looking at the blood being drained into an injection, that causes fear, that causes distress to a person, ठीक है. और इसकी वजह से आपके इस तरह के जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ब्लड टेस्टिंग होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, या फिर eventually having the fear of being injured, ये सारा इस कैटेगरी में आता है. उसके अलावा जो फोबियाज होते हैं, they include fear of falling down, fear of loud sounds, a fear of costumed characters such as clowns. अच्छा, मैं इस टाइम पे अपने साथ साथ फोबियाज जो है वो उनको आइडेंटिफाई भी किए जा रही हूँ और मैं आप लोगों को भी कम्युनिकेट किए जा रही हूँ. तो लेट मी जस्ट लाइक गो ओवर दिस एंड जस्ट टेल यू व्हाट आई एम fearful of. I am hydrophobic, मुझे पानी से डर लगता है, because I have been seeing various deaths because of people drowning. I am fear of snakes. I'm phobic of snakes, ठीक है. And thirdly, I am extremely phobic of clowns. मुझे भी picture भी दिखा दे clown की तो मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है. So like these are things, and these are normal things. This is not affecting my life. It does not become a disorder until it affects my life, ठीक है. Yes, I do actively avoid seeing any clowns or pictures of them. My friends know that, and वो मुझे तंग भी करते हैं बहुत ज़्यादा pictures भेज के, but it's fine. It's fine. It's not something कि मुझे होगा. इन सब की जो reasons हैं वो कुछ इसी तरह की हैं कि आपने या तो बचपन में कोई ऐसा event देखा है, कोई ऐसी documentary देखी है, या फिर you have been exposed to such kind of a thing जो कि आपको बहुत ज़्यादा traumatic उस टाइम पे feel हुई थी. Like मैंने बचपन में एक ड्रामा देखा था, जो हॉरर मूवी, जो हॉरर सीरियल जिसके अंदर एक क्लाउन था जो कि लोगों को कत्ल कर रहा था, तो उसके बाद से I developed this fear, ठीक है. तो I have, everyone has different phobias, but वो एक हद तक limited है. When it becomes a reason of immense anxiety for you, then it becomes a phobia, और वो उस particular situation, उस particular stimulus के against ही express होता है, otherwise it does not affect your life. अच्छा ना, सब इसके मजीद अगर हम स्पेसिफाई करते चाहें तो आपके कुछ डिफरेंट जो फोबियाज हैं उनमें एक एक्रोफोबिया आता है, fear of high places, agoraphobia, fear of open public places, algophobia, fear of pain, astrophobia, fear of thunder, claustrophobia, fear of closed places यानी कि elevators and small rooms and इस तरह की जो चीजें होती हैं, या फिर जो आपकी तंग गलियां होती हैं उसमें जाते हुए आप डरें अगर. Nyctophilia is fear of darkness, thanatophobia is fear of death, androphobia is fear of nail, I think we all have that. Pyrophobia is fear of fire, and kleptophobia is fear of theft, यानी कि आपको बस आप obsessively सोच रहे हैं कि मुझसे कोई चोरी ना कर ले, ठीक है. अब इससे अलावा बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं स्पेसिफिक फोबियाज की और ऑब्जेक्ट्स भी हैं, बट इट डज वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर कि फोबिया जो इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है. अब सिम्टम्स क्या है स्पेसिफिक फोबिया के? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेसिव और इरेशनल फियर ऑफ a specific object or situation. सेकेंडली, आप उस ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को अवॉइड करते हैं एक्टिवली, या अगर आप उसको सामना उसका कर रहे हैं तो यू आर एंड्योरिंग इट विद ग्रेट स्ट्रेस. Physical symptoms of anxiety या फिर panic attacks such as pounding heartbeat, nausea, diarrhea, sweating, trembling, shaking, numbness or tingling, problems with breathing, या आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता है, आप डिजी होना शुरू हो जाते हैं, आपको एकदम से लगता है कि मेरा हवास बाख्ता हो रहे हैं, या फिर फीलिंग लाइक यू आर बीइंग चोक्ड. चोक का मतलब ये है कि आपको अपने गले में ऐसे फील होता है कि देयर इज अ प्रॉपर समथिंग दैट इज ब्लॉकिंग योर ये जो आपका इसोफेगस होता है उसको ब्लॉक कर रहा है समथिंग, या यू आर बीइंग चोक्ड यानी कि आपका गला को दबा रहा है, इस तरह की फीलिंग होती है. देन जो फोर्थ सिम्पटम है वो है एंटिसिपेटरी एंजाइटी, यानी कि आप हर टाइम पे एंशियस रहें, आप नर्वस रहें कि कहीं मैं ऐसी सिचुएशन में चली ना जाऊं या मैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से ना एनकाउंटर हो जाए मेरा जो कि मेरे फोबिया को ट्रिगर कर ले. यानी कि अ पर्सन विद द फियर ऑफ डॉग्स may become anxious about going for a walk because he or she may see a dog along the way, ठीक है. बच्चे किस तरह स्पेसिफिक फोबिया अपना एक्सप्रेस करते हैं, उनकी एंजाइटी इस तरह से एक्सप्रेस होती है कि जिस टाइम पे अगर उनको किसी सिचुएशन में या किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट उनको फोबिक सिम्पटम्स ट्रिगर हो रहे होते हैं, दे एक्सप्रेस देयर एंजाइटी बाय क्राइंग, या फिर वो माँ बाप को बहुत जोर से चिपक जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू करते हैं, एक्सेसिवली रोना, एक्सेसिवली चीजें उठा के फेंकना, बात बात पर चीखना. बच्चे जो ये वाली हरकतें करते हैं, चीजें उठा उठा के फेंकना शुरू करते हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रोइंग अ टैंट्रम, ठीक है. Moving on, agoraphobia. Agoraphobia आपकी बुक में है included, इस वजह से we're just going to brush through it बहुत quickly. Agoraphobia जो है, it is basically a fear of public places, ठीक है. एगोराफोबिया के अंदर आप इस तरह की fear of public places भी इसमें कह सकते हैं, या closed spaces भी कह सकते हैं. Anything that makes you feel distressed about the fact that will you be able to escape the particular situation अगर कोई emergencies
लाइक क्राइसिस सिचुएशन कोई हो जाती है और आप एक पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन में है, विल यू बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट? यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा कोई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिव किस्म की सीरीज देखते हैं, या अगर आपने बचपन में बहुत ज्यादा इस तरह की स्टोरीज देखी हैं या डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, इन केस या आपको बहुत ज्यादा डराया जाता है बचपन में कि बाहर नहीं जाना, कोई तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, इस तरह की बातें की जाती रही थी आपके साथ बचपन में, और यू हैव सीन सम इवेंट्स और यू हैव सीन समवन गेटिंग किडनैप्ड फॉर अल्लाह ना करे फॉर एग्जांपल, तो उस तरह की चीजों की वजह से आपके अंदर अगोराफोबिया जो है वो ट्रिगर हो सकता है। देन यू अवॉइड डिफरेंट प्लेसेस एंड सिचुएशंस जो आपको लगेगा कि आप अगर यहाँ पे ट्रैप हो जाएं तो आप भाग नहीं सकेंगे, आप किसी को बुला नहीं सकेंगे हेल्प के लिए, तो दैट ट्रिगर्स अगोराफोबिया। For example, you might worry or panic when you are in a public transportation, यानी कि buses, trains, ships or planes. आपको for example आपने देखा हो कोई plane crash अभी recently हुआ है, अब a lot of people might be agoraphobic, या फिर उनको specified phobia होगा planes का या उड़ने का, उनको डर लगेगा कि मैं कहीं flight में जाऊं और वो plane crash कर जाए, then what? Then large open spaces, parking lots and ब्रिजेस का मैंने आपको बताया कि वो जनरली एक होता है कि गाड़ी चढ़ती है उस पर तो बंदे को लगती है ना कि बीच में से कोई पट्टियां टूट के गिर जाए या यहाँ से ब्रिज क्लैप्स कर जाए, देन व्हाट? देन क्लोजिंग स्पेसेस, स्टोर्स एंड मूवी थिएटर, जहाँ से आपको लगे कि अगर कोई भी मसला हो तो आप बहुत स्विफ्टली, बहुत जल्दी में वहां से भाग नहीं सकेंगे। देन क्राउड्स आर स्टैंडिंग इन लाइन, बीइंग आउटसाइड ऑफ योर होम अलोन, अगर आप अकेले हैं, आप डरते हैं, तो आप हो सकता है अगोराफोबिक हो जाए। You will be willing to go just a handful of places, or you may even be dread leaving your house, यानी कि या तो आप घर में अपने आप को बंद कर लेते हैं डर की वजह से, या फिर आप कुछ स्पेसिफिक जगहों पे जाते हैं, उसके अलावा आप नहीं जाते। And social phobia. Social phobia is an irrational, intense, or persistent fear of a specific object, activity, or social situation which people avoid or endure with extreme distress and anxiety. The symptoms of social phobia include feeling very self-conscious in social situations with symptoms like extreme shyness, stomach ache, fast heart rate, dizziness, and crying. Having a persistent, intense, and chronic fear of being watched or judged by others. Feeling shy and uncomfortable when being watched, यानी कि जिस टाइम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी के सामने बात कर रहे हैं, या फिर कोई आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। फीलिंग हेजिटेंट टू टॉक टू क्लासमेट्स और टीममेट्स, आप आई कांटेक्ट, इसके जनरल आइडेंटिफाइबल जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका इस तरह से नॉन वर्बल बिहेवियर्स देखे जाते हैं कि आप आई कांटेक्ट नहीं करते, आप अकेले बैठ के खाना खा रहे हैं, या फिर आप किसी और से बात नहीं करते, या आप अपने व्यूज को एयर नहीं करते, लोगों को बताते नहीं है। जो कोई कहता है उसको चुप करके मान लेते हैं बिकॉज यू थिंक कि अगर आप बोलेंगे तो आपको जज किया जाएगा, या आपको, या फिर आप जनरली अपने फिजिकल सिम्टम्स की वजह से जो आपके सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं, आप फिजिकल सिम्टम्स आपके एक्सट्रीम है, उनकी वजह से ही अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो भी आपका एक नॉन वर्बल बिहेवियर है सोशल फोबिया को असेस करने के लिए। Having physical sensations of anxiety, यानी कि blushing, heart palpitations, nausea and sweating, and feeling of embarrassment or humiliation. तो सोशल फोबिया आप पहले भी थोड़ा सा जानते हैं, सोशल एंजाइटी भी होती है ये, बट इट बिकम्स ट्रांसफर्स और इट असेंड्स इनटू अ फोबिया व्हेन आप टोटली किसी भी सोशल सिचुएशन में जाने से बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाएं। Now, what are the different treatments? First of all, cognitive behavioral therapy, over and over again हम इसको बार बार देखते हैं। अब इसके अंदर आपकी different cognitive behavioral therapy के अंदर आपकी systematic desensitization होती है, आपको exposure दिया जाता है, या फिर आपके response को prevent करना होता है। जिस तरह मैं previously बात कर रही थी कि CBT के अंदर desensitization इस तरीके से की जाती है कि आपको gradually, slowly and gradually identify करें आप कि what are the things in a social situation that can trigger your anxiety. फिर आप उनको hierarchy wise arrange करते हैं, starting from the lowest, starting from an object that produces the lowest anxiety and going up to the particular trigger that stimulus that gives you the most anxiety, ठीक है। और फिर उनको जब आप अरेंज कर लेते हैं इस ऑर्डर में, देन आप ग्रेजुअली एंड स्लोली उन सब चीजों को एक्सपोज अपने आप को करते हैं उन चीजों को, और एक्सपोज करने में आपने अपना रिस्पॉन्स प्रिवेंट करना होता है कि आपने अगर एक्सपोज कर रहे हैं एंड यू थिंक दैट यू आर बीइंग एंग्शियस, तो आप उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है, जो रिस्पॉन्स है आपका, उसको अवॉइड करें, अपने एक्सपोजर टाइम को कंट्रोल करें। दिस इज लाइक क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग थिंग्स, बहुत ज्यादा वो इररिलेवेंट हो जाएगा आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंगली, लेट्स नॉट गेट इनटू दोस डिटेल्स। उसके अलावा मेडिकेशन, for situational phobias that produce intense temporary anxiety, for example a fear of flying, short acting sedative hypnotics दिए जाते हैं, Xanax दी जाती है आपको, एक बहुत कॉमन एंटी एंजाइटी इंड्रॉल वो दी जाती है,
nor I do not remember the chemical name इस time पे, but वो इस तरह से होते हैं कि आप different आपकी heart rates को, आपके physical symptoms को control करने के लिए होते हैं. Now, unless a phobia is accompanied by other conditions such as depression or panic disorder, आपको medicines नहीं दी जाती. अगर वो किसी और disorder के साथ link नहीं हो रहा, अगर वो सिर्फ एक phobia है, that's fine, it does not need any medication. रिलैक्सेशन टेक्निक जिस टाइम पे आप ऐसी जगह पे हैं जो कि आपको लगता है कि आप फोबिक हो रहे हैं या आपको एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है, यहाँ पे आप अपने आप को रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को मेडिटेट करें सो दैट यू डू नॉट एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर एंजाइटी सिम्टम्स. या अगर आप एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं तो उनका थ्रेशोल्ड जो है वो कम हो जाए. Then exposure therapy. Your doctor tries to change how you react to what you're fearful of by gradually exposing you to it. Just as CBT में discuss अभी हमने किया. For example, if you're afraid of dogs, you may start by just thinking about dogs. Then you might look at the picture of a dog. Then you might be spending time with a dog in a controlled environment. कि अगर आप उससे एकदम से डर जाएं या वो कोई आपको डरा दे तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है. Like relatively बहुत slow तरीके से expose किया जाता है एक इंसान को towards anything that makes the person phobic of it. The third one on our list for today is panic disorder. A panic disorder or phobia or anxiety. Now, panic disorder basically is linked with panic attacks. ठीक है, हम ज़्यादा इसमें वो discuss करेंगे. But the reason for discussing these three today was कि काफ़ी हद तक interlinked है और इनके अंदर किस तरह differentiate करना है मैं इनको end में आपको थोड़ा सा समझा भी दूँगी. Panic disorder occurs when you experience recurrent unexpected panic attacks. Panic attacks क्या होता है? We will be discussing about that. The DSM-5 panic defines DSM का मतलब है Diagnostic Statistical Manual, जिसमें सारे के सारे disorders को बताया गया है कि कौन सा disorder क्या है, उसके symptoms क्या है, उसको किस तरह से diagnose करना है and what and different details relating to it, जो कि एक psychologist को पता होनी चाहिए जो clinical practice करता हो. So the DSM-5 defines panic attacks as abrupt surges of intense fear or discomfort that peak within minutes. People with the disorder live in fear of having a panic attack. You may be having a panic attack when you feel sudden, overwhelming terror that has no obvious cause. You may experience physical symptoms such as a racing heart, breathing difficulties, and sweating. यानी कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि पैनिक डिसऑर्डर के अंदर जो पैनिक अटैक्स आपके आ रहे होते हैं इट कैन एक्चुअली हैपन व्हाइल यू आर asleep. आप एकदम से अपनी नींद से उठे और आपको एक पैनिक अटैक आ जाता है तो इट्स वेरी मच लाइकली. पैनिक डिसऑर्डर इज नॉट टाइमली, उसका कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं होता. ये नहीं स्पेसिफाई होता कि क्या वो आपको एक ही दफा आएगा, क्या वो रिकरेंट तरीके से आएगा, लेकिन ये है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट. आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बिकॉज इट इज a very painful experience to go through a panic attack. It is actually an extremely painful experience. तो क्योंकि उसकी बाद में जो उसकी एक फीलिंग होती है वो इतने तकलीफें होती है कि what was that, आप इतना overwhelmed होते हैं कि you start fearing having another one. तो आप anticipatory anxiety आपको बहुत ज़्यादा किकिंग करती है. And one thing that you need to know about anxiety disorders या फिर mood disorders वो ये है कि when you anticipate something, साइकोलॉजिकली इट हैज एन इफेक्ट ऑन यू. और जितना आप एक चीज को एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही ज्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं होने के. Symptoms of a panic disorder often begin to appear in teenage and young adults under the age of 25. If you have had 4 or more panic attacks or you live in fear of having another panic attack after experiencing one, you may have a panic disorder. अच्छा, panic attacks की स्टेज होती है. स्टेजेस में लाइक स्टेज 1 में आप फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी में होते हैं. स्टेज 2 में आपको पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो अकेले में इस तरह आना स्टार्ट हो जाते हैं. और स्टेज 3 जो होती है वो इस तरह से आते हैं पैनिक अटैक्स आपके कि यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट. वो कहीं भी किसी भी जगह किसी भी टाइम हो जाते हैं. Now the panic attack is a sudden episode of intense fear that triggers severe physical reactions when there is no real danger or apparent cause. Panic attacks can be very frightening. When panic attacks occur, you might think you're losing control, having a heart attack, or even dying. I've seen people having panic attacks. I've seen very close ones having panic attacks. It is extremely painful to even look at them. It is very difficult and very painful for the person who's going through them. I've seen people who are literally अपने पाँव जमीन पे मार रहे होते हैं तकलीफ से. इतना मैंने उनको पैनिक अटैक का इतना सिवियर लेवल भी देखा है. And they have no control over their crying behavior. They have no control over their breathings.
एंड इट इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल टू गो थ्रू इट। और उसकी रीजन सारी ये होती है कि आपकी एंग्जाइटीज जो होती हैं उनको किसी एक पॉइंट पर कंट्रोल नहीं किया गया प्रॉपरली एफिशिएंट तरीके से, तो वो बिल्डअप होते होते एंड में पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है। So many people have just 1 or 2 panic attacks in their lifetime, and the problem goes away. Perhaps when a stressful event or situation ends, यानी कि panic attacks it is a normal thing। जब आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, इट्स पॉसिबल कि आपको जिंदगी में 1 या 2 दफा पैनिक अटैक्स आए हों। But if you have recurrent unexpected panic attacks and spent long periods in constant fear of having another one, you may have a condition that is called panic disorder। यानी कि for instance अगर आपको 1 वीक के अंदर 4 या 5 पैनिक अटैक्स आ गए, तो there is no more time to wait and see कि आपको क्या दोबारा आते हैं नहीं। This is the high time that you have to be classified as a patient of panic disorder, and you must seek help immediately। Now, although panic attacks themselves aren't life-threatening, they can be frightening and significantly affect your quality of life. The treatment can be very effective. जब panic attack होता है आपको, तो उसके साथ में accommodating symptoms जो होते हैं, they are related to anxiety symptoms obviously। और पैनिक अटैक से पहले आप बिल्डअप करना शुरू हो जाते हैं उस चीज को, फिजिकल सिम्टम्स आपके बिल्डअप होते हैं, एंड इवेंचुअली व्हेन यू आर डन विद द पैनिक अटैक, आपको उनका जो इफेक्ट होता है, नंबनेस एंड टिंगलिंग ऑफ योर एक्सट्रीमिटीज, और उसके बाद में जो आपका एक एंटिसिपेटरी एंजाइटी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। Now, they typically begin suddenly without any warning. They can strike at any time when you're driving a car, at the mall, sound asleep, or even in the middle of a business meeting। यानी कि कोई टाइम नहीं है इसका, किसी भी टाइम किसी को भी आ सकता है। Because और इसका लेकिन वही वाली बात है कि if you have anxiety or if you are being subjected to a very stressful event in your life, you may have occasional panic attacks or they may occur frequently। यानी कि या तो आपको कभी-कभी आएगा या फिर आपको बहुत ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे। Panic attacks have many variations, but symptoms usually peak within minutes। You may feel fatigued and worn out after a panic attack subsides। यानी कि आप एकदम से बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, आपको उस चीज को ओवरकम कर रहे होते हैं। The panic attacks include typically some of these signs or symptoms: sense of impending doom or danger, fear of loss of control or death, यानी कि आपको लगता है कि बस आपसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर आप बस मरने लगे हैं। Then rapid pounding heart rate, आपकी palpitations होती हैं, आपकी हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, आप स्वेट बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं, आपके हाथ पाँव आपका जिस्म बहुत ज्यादा शेक करता है, ट्रेबल करता है, आपको अपना जो चोकिंग फीलिंग आती है, टाइटनेस फील होती है थ्रोट में, या फिर आपको बहुत ज्यादा सांस चढ़ता है, चिल्स, यू गेट रैंडम चिल्स, आपको एकदम से जिस तरह लगता है कि समथिंग इज like moving on your body, आपको एकदम से बैठे बैठे एकदम से चिल्स आते हैं, like कुछ ठंडी हवा लग गया, whatever। ठीक है। देन हॉट फ्लैशेस, जहाँ पे चिल्स है वहाँ पे उसके बरक्स हॉट फ्लैशेस भी हो सकते हैं कि आपको एकदम से बैठे बैठे गर्मी लगना शुरू हो जाए, जो आए और जाए। देन नॉजिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, इस वजह से कि आपको जो फिजिकल सिम्टम्स इतने ज्यादा मैग्नीफाई हो जाते हैं, उस वजह से आपके एब्डोमिनल पेन, अल्सर्स इवन हो जाते हैं, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको ऐसे लगता है जैसे आपको हार्ट अटैक आ रहा है। यू गेट हेडेक्स, वेरी फ्रीक्वेंट माइग्रेन्स, डिजीनेस, नमनेस, फेंट भी हो सकते हैं आप बिल्कुल अपनी तरह हाथ पांव छोड़ देते हैं उस टाइम पे आप अपनी रियलिटी के साथ बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, जिस टाइम पे पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक जिस टाइम पे आता है, यानी कि यू डू नॉट नो आप कहाँ हैं, आप किसके साथ हैं, आप अपने आप को उस चीज से निकाल नहीं पा रहे होते, एंड व्हेन द पैनिक अटैक एंड्स जनरली आप उस टाइम पे आना स्टार्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द रियलिटी। One of the most worst things about panic attacks is the intense fear that you will have another one. You may fear having panic attacks so much that you avoid certain situations where they might occur. Causes. It is not known what causes panic attacks या panic disorder। इसके अंदर आपको generally genetics आते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस आ जाता है, टेम्परामेंट, अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं, आपको स्ट्रेस को लेके आप स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, या फिर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो आपको ट्रिगर कर देते हैं आपकी सेंसिटिविटीज को, तो इट इज लाइकली कि आपके टेम्परामेंट की वजह से आप बहुत ज्यादा पैनिक डिसऑर्डर को फेस करें, एंड सर्टेन चेंजेस इन द वे पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन फंक्शन। Neurology obviously has an effect. Panic attacks may come on suddenly and without warning at first, but over time they're usually triggered by certain situations. हो सकता है कि आपको लाइफ का जो फर्स्ट पैनिक अटैक आए, आपको पता भी ना हो कि आप जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में थी उसकी इतनी ज्यादा एंजाइटी हो सकती थी, बट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग वन पैनिक अटैक इट्स पॉसिबल कि आपको डर लगना शुरू हो जाए, एंटिसिपेट करने लग जाए कि दोबारा ये काम ना हो जाए मेरे साथ। Then some research suggests that your body's natural fight or flight response to danger is involved in panic attacks. अब ये समझने वाली बात है थोड़ी सी कि for example if a grizzly bear came after you, your body would react instinctively.
your heart rate and breathing rate would speed up, and your body would be prepared for a life-threatening situation. Many of the same reactions occur in a panic attack, but it's unknown why a panic attack occurs and why when there is no obvious danger present. आप बैठे हुए अपने घर में, आप सो के उठे, अचानक से आपको पैनिक अटैक आ गया, देयर इज नो रीजन, लेकिन इसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपकी बॉडी जो है वो या तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में है, आप अपने बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अगर रखते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटीज होती हैं आपको, अगर आप कंटिन्यूसली जो है स्ट्रेसफुल इवेंट्स देख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स स्ट्रेस, या फिर आप बहुत ज्यादा ओवरली रिएक्ट कर रहे हैं उन चीजों को लेके, इट इज वेरी मच लाइकली कि आपको पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को मुसलसल अपनी सिंपैथेटिक डिवीजन को एक्टिवेटेड रखा है, आपने अपनी बॉडी को अनड्यू डिस्ट्रेस में रखा हुआ है, प्रेशर में रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो किसी एक पॉइंट पे आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। ठीक है, ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है? ट्रीटमेंट सिंपली रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग योर सिम्टम्स। आपके जो पैनिक डिसऑर्डर होता है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग दिस पर्टिकुलर अटैक। अगर आप उसको आपको पता है कि यू आर फेसिंग दिस थिंग, ठीक है, देन आप उस चीज में ये करते हैं कि आप सीबीटी जब आपकी होती है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए आपको सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। दीज आर नॉट एडिक्टिव, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एडिक्टिव नहीं है। आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए वो दिए जाते हैं, एंड सिंस आपके उसके बाद काम किया जाता है आपके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, यानी कि आपको जो पैनिक सिम्टम्स हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। आपको एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, रेगुलर स्केड्यूल्स बना के दिए जाते हैं। जनरली बिहेवियरल सिम्टम्स को, जिस तरह मैंने अभी बात की, having an emotion or feeling is fine, but controlling how you react to it या आपका outer overt behavior क्या होता है, that is in your hands। ठीक है, so treatments के अलावा कुछ और चीजें जो की जाती है वो ये है कि आप अपना एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी नींद के स्केड्यूल को बेहतर बनाएं, अपने स्टिमुलेंट्स को यूज करना बंद कर दें, कॉफी, चाय, सब कुछ उसको रिड्यूस कर दें। व्हेन यू आर टेकिंग मेडिकेशंस ऑब्वियसली उस टाइम पे आपने चीजों को रिड्यूस करना होता है। अच्छा, दिस इज जनरली व्हाट we were supposed to discuss today, but मैं थोड़ा सा आप लोगों को अगर बता दूं कि what are the ways one particular disorder can go into another, या फिर किस तरह से आपने उन लोगों को एक दूसरे से अलग करना है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो स्पेसिफिक फोबिया में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कन्वर्ट हो सकता है पैनिक डिसऑर्डर में। ठीक है, बिकॉज पैनिक डिसऑर्डर के भी कॉजेज जो है वो अननोन है, इवन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उसके भी कॉजेज अननोन है। दैट इज समथिंग दैट यू रिस्पॉन्ड टू व्हेन यू फील स्ट्रेसफुल। आपकी वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो आपकी फुल ऑन लाइफ का एक कोर्स भी हो सकता है, या फिर आपकी सेंसिटिविटीज हो सकती है, और maybe you are genetically predisposed to being sensitive because of any stressful conditions। उसके अलावा आपका जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है वो आपका ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए ओवर द टाइम। जो आपका दूसरा हमने डिसऑर्डर, जो तीसरा हमने देखा है फोबिया। फोबिया की वजह से आपको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। फोबिया आपका जो है वो ट्रिगर करता है पैनिक अटैक्स को, जिस टाइम पे आप उस पर्टिकुलर चीज को देखते हैं जिससे आप फोबिक हैं। ठीक है, या फिर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे फोबिया हो जाएगा। लाइक द रिजल्टेंट ऑफ फोबिया, आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने ज्यादा हैवी होते हैं कि उस फोबिया की वजह से आप पैनिक अटैक्स आपको आ जाते हैं। सो लाइक इफ यू थिंक अबाउट दिस, तो आपका जो panic disorder है, that is linked to both the disorders that we studied before it. The panic disorder is something that can be a resultant of generalized anxiety disorder, या फिर आपको पैनिक अटैक्स तब भी आते हैं जब आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट, सिचुएशन या ऑब्जेक्ट से फोबिक है। ठीक है, बट पैनिक डिसऑर्डर इज मोर लाइक, अ पैनिक अटैक इज मोर लाइक अ सिम्पटम ऑफ इमेंस एंजाइटी। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखें ताकि आप थोड़ा सा इन चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख सकें, सो दैट व्हेन यू स्टडी दीज थिंग्स एंड व्हेन यू सिट डाउन टू स्टडी दीज थिंग्स, आपको पता हो कि किस चीज में किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर patience and your time and your focus. Allah Hafiz.